friends, how are you? I hope you all are fit, fine, and healthy at your home. Once again, a very good morning to everyone. As in previous videos, we have discussed about some grammar topics which we have already covered and completed. We have completed 2 chapters from Beehive, 2 chapters from Movement, and 2 poems. Now we'll move ahead with the chapter number 3, another new topic from your Beehive textbook, The Little Girl. The Little Girl, which is written by Katherine Mansfield. Katherine Mansfield was born on 14th of October 1888 in New Zealand. But at the age of 19 years, from New Zealand, she shifted herself in UK. She started her journey in UK as a writer. First, she met some professional writer over there and became a good friend of them. And then slowly and gradually she started to write some short stories, some poems, and started her journey as a writer. She published, that means in first 15 months, during first 15 months, only and only she published that one story and one poem. But after that, कि 15 months तक सिर्फ और सिर्फ उसका एक one story और एक one poem ही published हुआ था. But after 15 months, she has written different and many new stories like The Garden Party, Miss Brills, The Doll's House, The Cup of Tea, The Voyage, and many other short stories she has written. Slowly and gradually, she became a famous writer. कि वो अब सबके दिलों में बहुत राज कर रही थी, सब लोग उसको बहुत अच्छा यानी कि रिस्पॉन्स देने लगे थे. She became a very famous writer. But unfortunately, just at the age of 35 years, that means 1923, till that means from 1888 to 1923, सिर्फ 35 years की छोटी सी उम्र में she died on 9 January 1923. But what we can say कि एक शॉकिंग बात ये थी कि many short story which she has written, many things which she has written, which was remained unpublished till her death. इतने सारे शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश तो हुए थे, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरीज, कुछ ऐसे थिंग्स थे जो जब तक वो मरी तब तक वो पब्लिश ही नहीं हुए थे. It was remained unpublished till her death. This is the introduction or the small information about our writer Katherine Mansfield. Now we'll move ahead about our chapter, The Little Girl. Here in this Little Girl, when we just look this title, The Little Girl, at that moment the first question comes in our mind. कि डेफिनेटली कि हम लोगों को पता चल ही जाता है कि दिस चैप्टर इज अबाउट अ लिटिल गर्ल. ऑफ कोर्स इट इज अबाउट अ लिटिल गर्ल, बट दैट मैसेज और दैट डीप सेंस और डीप मीनिंग इज डिफरेंट. हियर इन दिस चैप्टर दैट कैथराइन मैन्सफील्ड इज टेकन अवर एग्जांपल अ स्मॉल लिटिल गर्ल दैट केजिया, कि केजिया के अंदर उसने अपने खुद को रखा है. She described her own life कि उसकी लाइफ भी शायद कुछ ऐसी थी. उसने अपने आप को यहाँ पे टोटली इन्वॉल्व कर दिया है. To that means while giving the example of this chapter as well as the small character and main character of this chapter, Kezia. Kezia is a small little girl. Her father is a very successful businessman. वो businessman बहुत successful थे. But एज अ फादर के वो बहुत व्हाट वी कैन से कि एक स्ट्रिक्ट फादर थे कि वो कुछ भी चला नहीं लेते थे, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग विल के एक अच्छी तरह से गुड मैनर में होना चाहिए. दैट्स व्हाई केजिया इज फीलिंग टू मच स्कैर्ड फॉर हर फादर, कि उसको बहुत डर लगता था. इवन मोस्ट प्रोबेबली मेनी टाइम्स एंड इवन के ऑलवेज सी व्हाट वी कैन से कि डिनाई, और वो ये कहती थी कि उसको डर लगता था उसके फादर के सामने जाने से. उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट और रूड थे, ये भी कह सकते हैं. इन
the language of that Kezia. Kezia already described in this chapter कि my father is a very rude, like a giant, like that she has described कि उसकी आंखों में उसके फादर की इमेज एक ऐसी ही थी कि एक बड़ा सा राक्षस या फिर एक बहुत रूड पर्सन। केजिया वेंट चर्च विथ हर फादर, लेकिन हाँ एक बात थी कि एवरी संडे केजिया अपने फादर के साथ चर्च में जाती थी। एंड वही एक दिन था जहां पे उसके फादर के साथ उसको थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता था। एंड एट दैट मोमेंट शी इज गेटिंग चांस टू स्पीक समथिंग, टू टॉक समथिंग अबाउट हर, अबाउट एवरीथिंग। हियर ऑन संडे आफ्टरनून, वन संडे आफ्टरनून दैट हर ग्रैंडमा सेंट हर टू टॉक टू हर पेरेंट्स। अब ये पूरे चैप्टर में उसके पेरेंट्स के साथ साथ उसकी जो ग्रैंडमा थी, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हर, वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। वो सब कुछ पूरी सिचुएशन केजिया की जानती थी, मेंटली सिचुएशन कि हाँ मेरी केजिया क्या फील कर रही है, उसे कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ जानती थी। उसको ये भी पता था कि मेरी केजिया है वो अपने पापा के सामने से जाने से डरती है। And that's why on Sunday afternoon, that means each and every Sunday afternoon, she sent her to talk with her parents. कि एटलीस्ट तू बेटा बात तो कर, एटलीस्ट बात कर, तो बात करने से कुछ होगा। So like that she tried to कि वो बाप और बेटी के रिलेशन कुछ अच्छे हो जाए। That a little evening, that the little girl, he was figured to be a feared and avoided every morning. Her father going to work, and while going to work, first of all he kissed her. That means कि उसके फादर वर्क पे जाने से पहले उसको जो एक फादर और डॉटर का जो रिलेशन होता है तो वो कैजुअल किस करके ही ऑफिस जाते थे। एट दैट मोमेंट शी वोक अप एंड से गुड बाय पापा, ऐसे वो बाय कहती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम बैक, यानी कि जब वो वापिस आते थे, एट दैट मोमेंट that Kezia stood near the staircase and heard कि जब वो वापिस आते थे तब उसके फादर का बिहेवियर कुछ और था, बिकॉज वो लाउडली वहाँ पे घर में आके शाउट करते थे कि वेयर इज माई बैग, दैट मीन्स वेयर इज माई बैग, वेयर इज, जस्ट ब्रिंग मी अ टी एज सुन एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल। और जो उसकी मदर थी, केजिया की मदर, वो घबराहट के मारे फटाफट सब कुछ काम और फटाफट लेके आ जाती थी। ये उसने अपने पापा का यही बिहेवियर देखा था कि मेरे पापा घर आके इतना रूड बिहेव करते हैं। एंड केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल कैन कम डाउन एंड टेक हर फादर्स बुक्स। तो उसकी मदर उसको कहती बेटा व्हाई यू आर स्टैंडिंग ओवर देयर, कम हियर एंड टेक आउट योर फादर्स बूट, दैट मींस शूज। केजिया वहां से अपने पापा के पास आने से भी बहुत डरती थी, लेकिन फिर भी वो आती थी। While taking out that shoes, again her father scolded her कि take it out properly. If you are a good girl, behave like a good girl. And then he scolded to his wife also. That means कि केजिया की मदर को कि why you are not teaching anything to her, कि इसको क्यों कुछ सिखाया नहीं है। और उस तरह से, यानी इन शॉर्ट की केजिया के माइंड में उसके फादर का एक ही इमेज था कि उसके फादर बहुत रूड थे, उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। और इसकी वजह से ही जब उसको मदर या उसकी ग्रैंडमा उसे बोलती थी तो वो कहती थी कि आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट अपीयर ऑन अ ब्रिंक ऑफ सुसाइड, Kezia carry a teacup and back to the table carefully. And now she described the image of her father कि he was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. यानी कि वो उसका एक कैसे कि उसका लुकआउट एक बड़े राक्षस जैसा था और वो उसके माइंड में यही इमेज उसकी छप गई थी। एंड थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। और उसकी वजह से ही यानी कि वो ये सोचती थी कि चलो मेरे पापा मेरे लिए यानी बहुत रूड है, पूरे वर्ल्ड में सबसे रूड पापा मेरे पास ही है, और क्यों ये इतना बिहेव ऐसे करते हैं उसको खुद पता नहीं चल रहा था। ऑन संडे आफ्टरनून के एवरी संडे उसकी ग्रैंड मदर उसको बोलती थी कि बेटा जस्ट गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स। जब भी वो नीचे आती थी अपने पापा के और अपने पेरेंट्स के साथ बात करने के टाइम पे, एट दैट मोमेंट हर फादर जस्ट
दैट मीन्स लाई ऑन अ बेड, कि वो अपने फादर उसके सोफा पे लेटे हुए एंड उसके फेस पे हैंकी रखा हुआ है एंड हर मदर इज बिजी विद दैट न्यूज़पेपर, और उसकी मदर वो न्यूज़पेपर यानी कि पढ़ रही है। तो यही एवरी संडे का सिनारियो था। वन डे हर ग्रैंडमा इन्फॉर्म्ड हर कि नाउ नेक्स्ट वीक योर फादर्स बर्थडे इज देयर, सो डू यू वांट टू गिव सम गिफ्ट। तो उसके केजिया को कुछ ऐसा विचार आता है कि अरे यार चल मेरे फादर का बर्थडे है, सो आई गिव समथिंग। सो टिल दिस in this video I'll explain, that means I have explained the rest part I'll explain you in the next video. So I hope you understood the part 1, that means half of the chapter which I have explained you. I hope you understood, and I request you everyone that remaining part please just read, and in next video I'll explain the whole chapter. Till then, stay safe, stay happy, thank you and have a nice day ahead.